Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and today we are going to discuss reversed Carnot cycle and methods of refrigeration. So a refrigerator or a heat pump that operates on reversed Carnot cycle is called a Carnot refrigerator or a Carnot heat pump. As you may already know that Carnot cycle is used for heat engines. So any heat engine that is working on a Carnot cycle has highest efficiency. Similarly, any Carnot refrigerator that is working on reversed Carnot cycle has highest theoretical COP. So as you know that Carnot cycle is itself a reversible cycle, therefore reversing the Carnot cycle does reverse the direction of heat and work. The reversed Carnot cycle is most efficient refrigeration cycle operating between two specified temperature levels. हिंदी में हम इसे कहते हैं परिवर्तीय कार्नोट चक्र। तो एक रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो कि परिवर्तीय कार्नोट चक्र पर आधारित हो उसे हम कहते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर या कार्नोट हीट पंप। तो क्योंकि चक्र की दिशा में परिवर्तन हो जाता है इसलिए कार्य और ऊष्मा की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जिस तरह आपको पता है कि कार्नोट चक्र पर आधारित जो इंजन होता है उसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, उसी तरह से परिवर्ती कार्नोट चक्र पर आधारित कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक सबसे अधिक होता है। Now, a reversed Carnot cycle consists of four processes, two adiabatic, two isothermal. So, first one is adiabatic compression, then isothermal compression, then adiabatic expansion and isothermal expansion. तो परिवर्तीय कार्नोट चक्र में चार प्रक्रियाएं होती हैं। पहला आपका हो जाता है रुद्धोष्म संपीडन, ठीक है। दूसरा आपका होता है समतापीय संपीडन, तीसरा आपका होता है रुद्धोष्म प्रसारण और चौथा आपका होता है समतापीय प्रसारण। Now we are going to discuss the process of reversed Carnot cycle with the help of PVTS diagram. So as I told you, the first process is adiabatic compression. So it is here represented on the pressure volume graph as the process 1 to 2. So as you can see, 1 to 2 process represent adiabatic compression of the working fluid with the help of external work. So external work is supplied to it. As you can see, the pressure will increase from P1 to P2. Since the process is compression, therefore volume will decrease from V1 to V2 and the temperature will increase from T1 to T2. So as you can see on the temperature entropy graph, the temperature is increasing from T1 to T2. Next process is isothermal compression. Now as you can see, isothermal compression is the process represented by 2 to 3. So this process is isothermal compression 2 to 3, and here it is represented on the temperature entropy graph 2 to 3. So in case of isothermal compression, the working fluid rejects the heat at constant high temperature T1. So in the process 2 to 3 you can see the pressure will increase from P2 to P3. The volume will decrease from V2 to V3
and the temperature remains constant as T2 is equal to T3. So in this process the heat will be rejected at high constant temperature. Now the third process is process 3 to 4, that is adiabatic expansion. Now in the adiabatic expansion you can see, as it is the expansion process, therefore the pressure will decrease from P3 to P4, volume will increase from V3 to V4, and during the process 3 to 4 the temperature will decrease T3 to T4 and the entropy S3 is equal to S4 remains constant. So during the adiabatic expansion the temperature of the working fluid will decrease. Now the last process is isothermal expansion of air. See, now this process is represented by 4 to 1 here on the pressure volume graph and 4 to 1 here on the temperature entropy graph. So in case of isothermal expansion of air, heat is absorbed at low temperature from the space T2. So this is the space which is actually cooled and from where the heat is absorbed. So in this process you can see the pressure will decrease from P4 to P1, volume will increase from V4 to V1, and the temperature T4 is equal to T1 remains constant. So as you can see, the actual cooling is happening in the isothermal expansion process. Now in the isothermal expansion process the heat is absorbed, which is shown here by Q2. Now this heat absorbed is not enough to be rejected in the atmosphere. Therefore additional work is added by adiabatic compression process. Now in the adiabatic compression process no heat is added or rejected, but work is added so that the heat energy is enough to be rejected at a high temperature, that is T1. So once this energy is added, then in the 2 to 3 process where you can see that the heat is rejected, this rejected heat is Q1. Now the rejected heat Q1 is the sum of energy by Q2 and the work done during the adiabatic compression. So after this heat Q1 is rejected, so after this heat Q1 is rejected, again the temperature is decreased in the process 3 to 4. Now this temperature is decreased so that again in the process 4 to 1 heat can be absorbed to produce the refrigeration effect or cooling. ठीक है, तो हिंदी में देखिए आपका जो पहला प्रोसेस यानी पहली प्रक्रिया है वो है रुद्धोष्म संपीडन 1 से 2। तो रुद्धोष्म संपीडन में देखिए क्या होगा, आपका जो तापमान है 1 to 2 यानी कि तापमान आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेशर यानी कि दो आपका दाब होता है, ठीक है। तो दाब आपका भी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ठीक है। और आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है 1 से 2, ठीक है। तो आपका तापमान जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, दाब आपका इंक्रीज कर रहा है और जो आपका आयतन है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रुद्धोष्म आपका
प्रक्रम है, प्रक्रिया है, तो इसमें कोई भी ऊष्मा का स्थानांतरण आपका नहीं होता। इसके बाद देखिए जो अगली प्रक्रिया है वो है हमारी समतापीय संपीड़न। तो समतापीय संपीड़न 2 से 3 प्रोसेस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 3 प्रोसेस में आपका जो समतापीय संपीड़न हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका तापमान है, क्योंकि समतापीय है तो तापमान क्या रहेगा आपका, स्थिर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो दाब है वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, और क्योंकि संपीड़न का प्रोसेस है इसलिए आयतन आपका 2 से 3 आपका घट जा रहा है। और Q1 के फॉर्म में, ठीक है, Q1 के फॉर्म में आपकी जो ऊष्मा है ये इसमें से आपकी निष्कासित हो रही है, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस है आपका 3 to 4, ठीक है, जो कि हमारा हो जाता है रुद्धोष्म प्रसारण। तो अब क्योंकि प्रसारण हो रहा है इस वजह से आप देख सकते हैं 3 to 4 आपका जो प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर जो है 3 to 4 आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तापमान आपका 3 to 4 डिक्रीज कर रहा है। आयतन, अब प्रसारण होने की वजह से 3 to 4 आपका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो मेन हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी आपका कार्यकारी माध्यम होगा उसका जो तापमान होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट प्रोसेस देखते हैं हमारा, जो कि है समतापीय प्रसारण, ठीक है। तो देखिए समतापीय प्रसारण में क्या होगा, क्योंकि प्रसारण है तो जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज कर रहा है 4 to 1, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है 4 to 1, और समतापीय होने की वजह से जो तापमान है आपका वो स्थिर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि Q2 के फॉर्म में आपकी जो ऊष्मा है वो यहाँ पर अवशोषित करी जा रही है। तो Q2 ऊष्मा यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो यहीं पर हमारा जो प्रशीतन प्रभाव होता है वो उत्पन्न होता है। तो सारा जो हमारा कूलिंग इफेक्ट है, प्रशीतन प्रभाव है, वो यहीं पे आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न होगा, Q2 एनर्जी जो आपकी हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब ये Q2 ऊष्मा आपकी इतनी नहीं होती है जो हम इसे क्या कर सके, वातावरण में स्थानांतरित कर सके, निष्कासित कर सके। तो उसके वजह से हम क्या करते हैं कि रुद्धोष्म आपका संपीड़न से उसमें ऊर्जा कार्य के फॉर्म में आपका जोड़ते हैं, जिससे वो एनर्जी इतनी हो जाती है कि Q1 आपकी एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारा समतापीय संपीड़न के फॉर्म में यहाँ से क्या होती है, आपकी रिजेक्ट होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। फिर रुद्धोष्म संपीड़न से हमने उस ऊर्जा को क्या करा, आपका बढ़ाया, ताकि हम फिर इसको यहाँ से वातावरण में क्या कर सकें, निष्कासित कर सकें, ठीक है। फिर एक बार हमने इसको निष्कासित कर दिया है तो वापस से हमारा कार्यकारी माध्यम का तापमान कम करने के लिए हम उसमें रुद्धोष्म प्रसारण करते हैं, ताकि वापस से जो तापमान है आपका कम हो जाए, ताकि वो फिर से ऊष्मा को अवशोषित करके प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न कर सके। Point to remember, now practically the reversed Carnot cycle cannot be used for refrigeration purpose. So it is a theoretical cycle and cannot be actual use to design a refrigerator. The reason for this is that it uses 2 adiabatic process and 2 isothermal process, and what happens is that the adiabatic process requires a very high speed operation, whereas the isothermal process required a very low speed operation. So basically in case of adiabatic process we don't want any heat transfer, so we try to carry the process at such a speed that no heat transfer occur and the process is very fast. In case of isothermal process, since we have to maintain the temperature, so we go for the quasi-static process, which is a very slow process to maintain the temperature during the process. Now due to this
combination of high and low speed. Let's suppose we are running a compressor, so at a time it will be required to run at a very high speed, and then again it will be required to run at a very slow speed. So for this reason this is not actually practically possible. Therefore this Carnot cycle refrigerator is a theoretical concept and is not actually practically built. ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हमारी जो रिवर्स कार्नोट साइकिल यानी कि परिवर्ती कार्नोट चक्र होता है ये सैद्धांतिक होता है और इसको हम वास्तविक रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। वास्तविक रूप में परिवर्तित नहीं कर पाने का कारण ये है कि इसमें जो दो मेन आपके प्रक्रियाएं यूज़ होती हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया और समतापी प्रक्रिया। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इसमें कोई ऊष्मा का स्थानांतरण हो, लेकिन हमारी जो संतापी प्रक्रिया होती है ये बहुत ही आपकी धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो तापमान है वो मेंटेन रहे। तो आपका थ्योरेटिकली यानी कि सैद्धांतिक रूप से तो पॉसिबल होता है कि हम कह दें कि आपका जो इंजन है वो या फिर जो हमारा कंप्रेसर है वो एट अ टाइम बहुत फास्ट रन कर रहा है और एट अ टाइम बहुत स्लो रन कर रहा है, यानी कि बहुत आपका तेज़ रन कर रहा है और फिर बहुत ही आपका धीमे रन कर रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं यानी कि वास्तविक रूप से बात करते हैं तो वास्तविक रूप से ऐसे कंप्रेसर को डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, जिसके वजह से हम इसे केवल सैद्धांतिक रूप में इस्तेमाल करते हैं और वास्तविक में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम हमारे आज के वीडियो के लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आपका सबसे पहला आ जाता है आइस रेफ्रिजरेशन, यानी कि हमारे पास देखिए बर्फ़ है और उससे डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं। तो अभी भी देखिए प्रैक्टिकली इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्माकोल वगैरह के बॉक्सेस में हम लोग आइस वगैरह रख के, ठीक है, ताकि वो देर में आपका मेल्ट करे। ठीक है, तो हम लोग आइस रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं। तो ये सबसे कह सकते हैं आपका पुराना रेफ्रिजरेशन मेथड भी आपका है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर। तो आपका जब आइस के बाद जो पहला कह सकते हैं जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिज़ाइन हुआ था वो डिज़ाइन हुआ था रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर। ठीक है, मगर क्योंकि एयर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऊष्मा अवशोषण या निष्कासन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से अब हम इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन ये आपका इनिशियली आपका डिज़ाइन किया गया था रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर। नेक्स्ट आ जाता है रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो हमने फिर वही एयर के बाद जब हमने देखा एयर की आपकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर उतनी अच्छी नहीं हैं तो हमने इस तरह की गैसेस ली जिनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ आपकी एयर से बेटर हैं, जो कि फिर हमारी कैटेगरी आ गई रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है जो अभी सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होती है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में भी आपका डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम आपका क्या करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं उसके फेज़ में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग केवल उसमें से आपकी सेंसिबल हीट आपका एब्जॉर्ब कर रहे थे जब हम एक्सपेंशन प्रोसेस से कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम केवल गे ऊष्मा उसकी आपकी अवशोषित या निष्कासित कर रहे थे। लेकिन जब हम वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आते हैं तो वेपर रेफ्रिजरेशन के सिस्टम के केस में हम लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हमारी जो सिस्टम की एफिशिएंसी और दक्षता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका जो नेक्स्ट कन्वेंशनल में लास्ट टाइप आ जाता है वो है आपका स्टीम जेट
रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में बात करें तो इनको हम लोग अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्गीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके नाम पता होने चाहिए। तो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में पहला आ जाता है आपका वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, नेक्स्ट है आपका पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, और लास्ट जो हम लोग भी आगे अपनी क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो वीडियो के फ्यूचर अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।